شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاؤ جلال اور تمطراق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلے منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا، اسے نیند نہیں آ رہا تھا۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بد ذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر کہا، باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بد ذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں نکلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم اس طرح مت کرو، اسے اللہ رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی۔ لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بد ذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو، میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمہ سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی۔ آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل تک جا پہنچے۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ کھڑا کرنا شروع کیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ خدام ایک اور خیمہ اس کے خیمے کے قریب کھڑا کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہ کس کا خیمہ ہے؟ خدام نے جواب دیا کہ وکیل کا خیمہ ہے۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا، میں ایک عورت ہوں، تم اپنا خیمہ میرے خیمے کے قریب سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کر دیا ہے اور پرزور تاکید کی، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ شہزادی نے جواباً کہا، اتنے جم غفیر کے درمیان مجھے اور میرے سامان کو کوئی چرا کر نہیں لے جا سکے گا، بہتر یہی ہے کہ تم
तुम अपना खैमा कहीं दूर खड़ा करवा लो, लेकिन बदकार वकील टस से मस न हुआ और अपना खैमा इधर ही खड़ा करवा दिया। शहजादी पहले से ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए उस रात अपने पूरी होशो हवास में थी। वैसे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। आज भी उसने आधी रात को किसी के कदमों की आहट अपने खैमे की तरफ आते सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो उसे ललकारा, खबरदार, मेरे खैमे में दाखिल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाओ खैमे से। लेकिन वकील अपने नापाक इरादों के साथ उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने दोबारा इसे कहा, तुम जानते हो कि मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ, एक पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ और अपने अंजाम की फिक्र कर। लेकिन बदकार वकील कहाँ टलने वाला था। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। शहजादी समझ गई कि ये बदजात भी नहीं टलने वाला। उसने अपने दूसरे बेटे को इसके सामने किया और उसे दुहाई दी, इस मासूम के सर की कसम, मेरा पीछा छोड़ और निकल जा यहाँ से। लेकिन वकील ने भी तलवार से वार करके उसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा कर दिया। शहजादी ने बेचारगी से कहा, अगर तुम अपने नापाक इरादे से नहीं टलने वाला तो मुझे मौका दे, क्योंकि मैं पाक और साफ और वजू से हूँ। मुझे कुछ वक़्त दे ताकि मैं खुद को नापाक कर दूं, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे करो। वकील ने इसे जाने दिया। शहजादी खैमे से निकल गई। आज भी शहजादी में जितनी हिम्मत थी निकल भागी और जहाँ तक उसके कदमों ने साथ दिया भागी और आखिरकार थक हार कर एक बड़े झाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वकील ने जब देखा कि शहजादी अभी तक नहीं आई तो उसके पीछे निकल पड़ा। इधर उधर भाग दौड़ कर इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब इसे डर लगने लगा कि बच्चा भी जान से गया और शहजादी भी भाग निकली। अगर किसी ने बादशाह को खबर दी तो वो मुझे खौलते तेल में तल देगा। वकील जल्दी जल्दी वापस आया, मरे हुए बच्चे को उठाकर कहीं दूर दफन किया और अपने खैमे में जाकर सोता बन गया। जब सुबह हुई तो शहजादी आहिस्ता आहिस्ता अपने खैमे में दाखिल हो गई। देखा कि दूसरे बेटे की लाश भी नहीं है। समझ गई कि बद किरदार वकील ने इसे ठिकाने लगा दिया है। बेचारी किस पर एतबार करती, इसलिए चुप रही। लश्कर फिर शहजादी की बादशाह के मुल्क की तरफ रवाना हो गया। आज शहजादी अकेली एक बेटे के साथ गमों का अनबार लिए ऊंट पर सवार थी। जब तीसरे मंजिल पर पड़ाव डाला गया तो आज वजीर और वकील ने अपने खैमे शहजादी के खैमा से बहुत दूर खड़ा करवा दिए थे। वो शर्मिंदा शर्मिंदा शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरानो परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। आज जैसे ही शहजादी का खैमा खड़ा कर दिया गया तो देखा कि काजी साहब अपना खैमा इसके खैमे के सामने खड़ा करवा रहा है। शहजादी ने इसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन काजी बदजात भी टलने वालों में से नहीं था। आज की रात भी शहजादी के लिए क़यामत की रात थी। वो समझ चुकी थी कि काजी बदजात भी उन दोनों से किसी तौर पर कम नहीं। आज रात तो शहजादी बिल्कुल भी नहीं सोई, बैठी रही। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो देखा कि काजी भी खरामा खरामा खैमे में दाखिल हो रहा है। शहजादी ने इसे भी समझाने की कोशिश की, बहुत मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल के वास्ते दिए, यहाँ तक कह दिया कि अगर वकील जाहिल थे, तुम तो आलिम व फाजिल इंसान हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत जेब भी नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। इस पे उन बातों मिन्नत समाजतों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी ने देखा कि ये भी नहीं टलने वाला तो उस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को इसके सामने कर दिया। उसकी दुहाई दी, वास्ते दिए, लेकिन काजी तो उन दोनों से भी 2 हाथ आगे था। काजी बदबख्त को भी रहम ना आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने इसे भी यही कहा कि मैं पाक और साफ हूँ, वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ दूं, इसके बाद जो तुम चाहो करो। काजी ने भी इसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर हैं तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। उससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया इसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के
दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे अपने कपड़े दरिया पर धोने के लिए लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। अब शहजादी के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसके होशो हवास जवाब दे गए कि कहां वो 3 बदजात व बद किरदार के उनसे अपनी इज्जत बचाकर भाग निकली तो इन 6 नंग धड़ंग फकीरों के हत्थे चढ़ गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सुलह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया ये किसी शहनशाह घराने की औरत है, मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इस वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ऐ मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई और 7वीं तुम्हारी ये बहन, इसकी खूब निगहदाश्त करो, इसकी बरकत से तुम सब सुरखरू रहोगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। इनको छोड़ जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी इससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने यक जबान होकर कहा, मलका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरानो परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो इन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाके अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और इससे पूछूं कि इसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म और सितम की वजह से इसकी बेटी डायन बन गई और अपने बच्चों तक को खा गई। चलते चलते उन्होंने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। इसे इधर उधर से सुनगिन मिल गई और समझ गई कि अपने बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। इसे पता था कि इसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाके बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, क्या वो इसे शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं। फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके इसको ये गोश गुजार दिया कि हमारी एक बहन है जो बहुत अच्छी किस्सा गो है, अगर इसे पसंद हो तो इसे किस्सा सुनाने के लिए लेकर आएं। बादशाह ने इन्हें इजाजत दे दी और कहा कि अगर इसके किस्से पसंद आए इसे शाही किस्सा गो रख देगी। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाम में थी और दरमियान में भी पर्दा हायल था। उसने बादशाह के लिए एक किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनामो इकराम दिया। फकीर इनामो इकराम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश हुए। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद और इनामो इकराम पाकर वापसी अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर, बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह इसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाम में थी। पर्दे के दूसरे तरफ अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं एक बहुत खास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत दरपेश है तो अभी से उठकर रफा हाजत पूरी करे। दास्तान के दरमियान किसी को उठने की इजाजत नहीं है। अगर कोई उठ गया तो मैं दास्तान सुनाना बंद कर दूंगी और आइंदा के लिए भी कोई दास्तान सुनाने नहीं आऊंगी। बादशाह ने सबको हुक्म दिया। सब ने इकरार किया कि वो दास्तान के दरमियान नहीं उठेंगे। शहजादी ने दास्तान सुनाना शुरू की। एक जालिम बादशाह था, उसे अपने घर में बेटी की पैदाइश पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा होती तो वो अपने बीवी को इसे मारने का हुक्म देता। इसकी बीवी ने दाई के जरिए अपनी बेटी को बचाकर उसकी परवरिश की। एक दिन उस लड़की पर बादशाह की नजर पड़ी जो अब जवान हो गई थी। इस बूढ़ी दाई के घर अपने लिए रिश्ता भेजा, लेकिन दाई ने तस्लीम नहीं किया। बादशाह ने इस पर जुल्म और सितम ढाए। तब दाई ने बताया कि वो लड़की इसी बादशाह की बेटी है। बादशाह हैरान हुआ कि ये तो मेरा किस्सा है जो ये खातून सुना रही है। बादशाह ने बहुत से हीरे जवाहरात शहजादी की तरफ फेंक कर कहा कि देखना, दास्तान को बंद मत करना। शहजादी ने हीरे जवाहरात फकीरों की तरफ फेंक दिए जो इसे पाकर बहुत खुश हुए।
शहजादी ने दास्तान जारी रखते हुए कहा, बादशाह ने बेटी को अपने बेटे के हवाले करके कहा कि इसे जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे और इसकी आंखें और खून निकाल कर इसे दिखा दे। लेकिन भाई को अपने हाथों से बहन को कत्ल करना गवारा न हुआ और अपनी बहन को जंगल में छोड़कर वापस आया। जंगल में वो लड़की बहुत अरसा रुलती रही, यहाँ तक कि उसके जिस्म पर उसका लिबास तार तार होकर गिर गया और वो जंगल बियाबान में बेलिबास वक्त गुजारने लगी। बादशाह उमर रफ्ता रफ्ता के बायस अब बूढ़ा हो गया था। इसे पहले ही से अपनी बेटी के साथ किए गए जुल्मों सितम से बहुत पेशमानी और पछतावा हुआ था। जब इसे दास्तान के जरिए अपनी बेटी के मुतल्लक पता चला तो उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। शहजादे को भी एहसास हुआ कि ये तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कुछ और हीरे जवाहिरात शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि दास्तान जारी रखना, रोकना मत। फकीर भाइयों के तो इतने इनामात देखकर बांछें खिल उठी। शहजादी ने कहा, एक दिन एक बादशाह का गुजर उसी जंगल से हुआ। लड़की को देखा और इसे अपने साथ अपने मुल्क ले जाकर इससे ब्याह रचाया। शहजादी का शौहर बादशाह, जो पहले बड़ी दिलचस्पी और इल्हमाक से दास्तान सुन रहा था, चौंक पड़ा कि ये तो मेरा और मेरी बीवी का किस्सा लग रहा है। उसने भी बहुत से हीरे जवाहिरात निकाल कर शहजादी की तरफ फेंक दिए और कहा कि देखना, दास्तान आखिर तक सुनाना, मुझे इस दास्तान को पूरा सुनना है। फकीर भाइयों के तो पैर खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शहजादी ने दास्तान जारी रखी। बादशाह ने उस लड़की से शादी की। उससे इसे 3 बेटे हुए। एक दिन बादशाह ने इसे इन बेटों के साथ अपने वजीर, वकील और काजी के हमरा इसके ससुराल रवाना किया। अब वजीर, वकील और काजी के औसान खता हो गए और एक दूसरे की तरफ जरा समैगी से देखने लगे कि ये तो हमारा किस्सा है। बादशाह ने कुछ और हीरे जवाहिरात शहजादी की तरफ फेंक दिए। फकीर भाइयों की बांछें खुशी से खुली जा रही थीं। पहली मंजर पर बादशाह का वजीर नापाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा और इसे बदी के लिए तंग किया। इसके बड़े बेटे का सर तन से जुदा किया, लेकिन लड़की किसी तरह अपनी इज्जत बचा के भाग निकली। वजीर मन मनाया, मुझे बहुत जोर का पेशाब लगा है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बादशाह ने इसे डांट दिया, खामोशी से बैठ बदजात कहीं के, इस वक्त तुम्हें क्यों पेशाब आ रहा है। वजीर चुप करके बैठ गया। दूसरे मंजिल पर इसी तरह वकील भी अपने नापाक इरादों के साथ लड़की को बदी के लिए तंग किया और अपने नापाक अज़ाइम पूरा करने के लिए इसके दूसरे बेटे का सर तन से जुदा करने से भी बाज न आया। पर पाक दामन लड़की ने यहाँ भी अपनी इज्जत बचाई और भागकर कहीं छुप गई। अब वकील बुकलाया, बादशाह सलामत, मुझे जोर की हाजत पेश आई है, बस मैं यूं गया और यूं आया। बादशाह ने वजीर पर आंखें निकाली, बस कर बदजात और खामोशी से बैठ, जब हकीकत जाहिर हो रही है तो तुम लोगों को हाजत पेश आ रही है। वकील भी खामोशी से बैठ गया। तीसरे मंजिल पर काजी भी अल्लाह रसूल को भूल कर बदी के लिए लड़की को तंग करने लगा और उस जालिम ने इसके तीसरे बेटे का सर कलम किया। लड़की ने फिर अपनी इज्जत बचाई और भागकर एक बड़े दरिया में कूद गई। काजी ने भी कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह ने इसे भी डांट कर चुप करा दिया। दरिया ने लड़की को कहीं दूर ले जाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां इसे 6 फकीरों ने देखा और इसे दरिया से निकाला। अब फकीर भाइयों की घुग्गी बंद हो गई कि ये ना हो ये हमारी बहन का किस्सा है। वो भी चुप साध कर बैठ गए। फकीर इस लड़की को अपने बाप के पास ले गए। उसके अक्लमंद बाप ने इस लड़की को इन 6 भाइयों की बहन बना दिया। इसके बाप बादशाह के आंखों से जल जल आंसू बह रहे थे। दोनों बादशाहों ने हीरे जवाहिरात के ढेर इनके सामने लगा दिए कि खुदारा दास्तान को जारी रखो। लड़की को किसी तरह पता चला कि ये उसके बाप बादशाह का मुल्क है। उसे पता था कि इसके बाप को दास्तान सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने भाइयों के जरिए बादशाह को कहलवा भेजा कि अगर इसे मंजूर हो तो आके इसे दास्तान सुनाए। यहाँ पहुंचकर उसके बाप बादशाह का दिल चूर चूर हो गया। वो एक फरियाद मारकर उठ खड़ा हो गया। शहजादी ने भी अपने चेहरे से नकाब उठा दी तो उसके शौहर बादशाह ने भी शहजादी को पहचान लिया। बाप बेटी को और शौहर बीवी को बेतरह खुश हो गए। दोनों ने वजीर, वकील और काजी को पकड़ा। इनसे कहा कि बोल कैसी सजा चाहिए। 4 चढ़ी चाहिक
یا چار بٹور، یہ برابوی زبان میں دو سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چار بٹور، بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے 4 اطراف میں باندھ کر انہیں 4 مخالف سمت میں دوڑا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ان بد ذاتوں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش تھے اور ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔